to this YouTube channel with our third video from chapter 6 of 12th Commerce OCM, that is directing. In the first few parts of this video we have learned about direction, concept of direction, and then we have discussed about the elements of direction. In that elements, supervision and motivation and characteristics of both we have, functions and characteristics of motivations we have done already. So today we will start with hierarchy needs by Maslow. Talking about hierarchy needs by Maslow, क्या है hierarchy needs by Maslow? Man needs are varied. These needs are decided on the basis of his mental status. He is motivated if these needs are satisfied. Many psychologists and management experts have made studies and formulated principles to arrange the needs in a proper order. The humanist psychologist Abraham Maslow had presented hierarchy needs in his article Principle of Human Motivation in 1943. Such 5 needs are arranged as per their priority. Okay, so क्या कह रहा है hierarchy needs by Maslow? एक ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट है अब्राहम मैस्लो, उन्होंने फॉर्म किया है हायरार्की नीड्स. हायरार्की मींस स्टेप वाइज नीड्स, प्रायोरिटी वाइज नीड्स. हालांकि सब मेंस जो है उनकी मेंटल स्टेटस अलग अलग होते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स के मेंटल स्टेटस अलग अलग होते हैं और उसी वजह से सबकी नीड्स भी अलग अलग है. ओके, स्टिल जब जो नीड्स सेटिस्फाई होती है तो मोटिवेटेड फील करते हैं. ओके, so we can see a table over here. अब्राहम मैस्लो ने 5 स्टेज में नीड्स को कैटेगराइज किया. फर्स्ट नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो बेसिक नीड्स होती है हमारी, फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर. देन सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, फिर आती है एस्टीम और स्टेटस नीड्स, हमारे स्टेटस मेंटेन करने के लिए, और उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स. ओके, तो देखते हैं क्या है. फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल नीड्स, सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स को हम प्राइमरी नीड्स भी बोलते हैं. फिजियोलॉजिकल नीड्स आर बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. बेसिक नीड्स इंक्लूड फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर एंड सो ऑन. Food is a basic need to sustain the body. A hungry person gives importance to food. It means that he does not give importance to other needs till his basic needs of food, clothing, shelter are not satisfied. Okay, तो सबसे पहले हमारी जब तक फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, हम दूसरे किसी भी नीड्स को इतना इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी नहीं देंगे. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज फिजियोलॉजिकल और प्राइमरी नीड्स. प्राइमरी नीड्स में क्या क्या है? फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर. Next is safety needs. Safety needs के after the physical needs are satisfied, the next need in the hierarchy is safety. It includes physical safety, job safety, safety against risk, regularity of wages, and so on. Therefore, man takes the measure, like takes the insurance, open saving account either in bank or post office. Such safety is necessary for mental peace. ओके, फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद आती है सेफ्टी. सेफ्टी सिर्फ फिजिकल सेफ्टी या सेफ्टी ऑफ लाइफ नहीं, फिजिकल सेफ्टी, जॉब सेफ्टी, सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, पेमेंट या सैलरी या वेजेस रेगुलर मिले वो सेफ्टी. ओके, और इन सब सेफ्टीज को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन बीइंग कभी कभी इंश्योरेंस भी लेता है, सेविंग अकाउंट भी ओपन कराता है, सेविंग करना भी स्टार्ट करता है, और ये सब चीज़ें उसको मेंटल पीस प्रोवाइड करती है. ओके, नेक्स्ट इज social need. When the need for security is satisfied, the next in the hierarchy is social need. It includes affection and love. Man is a social animal. He always wants love and affection from his family, relatives, and society at large. Such needs include feeling of getting love, and respect from the family members, friends, relatives, as well as by his colleague at workplace and by others in the society. Okay, थर्ड नीड क्या है हमारी? सोशल नीड. सोशल नीड बेसिकली
अफेक्शन और लव बेस्ड नीड है। मैन एक सोशल एनिमल होते हुए उसको फीलिंग ऑफ लव पसंद है, रिस्पेक्ट देना और लेना ज़्यादा पसंद है फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग एट वर्क, साथ में काम करने वाले और बाकी लोग जो सोसाइटी में है उनसे। तो थर्ड वन इज सोशल नीड। ओके, फोर्थ इज, अब जो 1 to 3 नीड्स थी ना उनको हम लो क्लास नीड बोलते हैं, जो हमने पढ़ी। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल या प्राइमरी, देन सेफ्टी एंड देन सोशल। दीज वर लो क्लास नीड्स। ओके, और जो फोर्थ है एस्टीम और स्टेटस नीड्स, उसको हम पोजीशन नीड या हाई क्लास नीड बोलते हैं। ओके, इट इंक्रीजेस द लॉन्गिंग टू हैव वन सेल्फ अप्रेजल, रेस्पेक्ट फ्रॉम colleagues एंड ऑफिसर एंड इंक्रीज इन रेपुटेशन। हिज डिजायर टू गेट इट इंक्रीज। जनरली क्या है, इंक्रीज इन रेपुटेशन या उसकी डिजायर उन सब चीज़ों को, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, एस्टीम पाने के लिए बढ़ती जाती है। ओके, एंड लास्ट वन इज सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। After satisfying above 4 needs, man tries to satisfy self-esteem and self-actualization need. Each person wants to get to the top position by getting the achievement. One's name is considered with pride and in the best way. His skills is considered with all his best in his own work field. Okay. फिफ्थ वन है सेल्फ एस्टीम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एस्टीम में क्या है कि हर कोई चाहता है कि वो जो भी ऑपरेशन में हो, जो भी फील्ड में हो, जो भी काम करे उसमें उनकी टॉप पोजीशन हो। दैट इज सेल्फ एस्टीम वर्क, मीन्स बेस्ट इन हिज ओन वर्क फील्ड। जैसे कि हम तबला की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे जाकिर हुसैन का नाम आता है। ओके, क्रिकेट की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम सचिन तेंदुलकर का आता है। एक्टिंग की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन, सिंगिंग की बात करते हैं तो लता मंगेशकर। सो ऑल दिस मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम मीन्स बेस्ट बनना सब में। क्लियर? सो दीज वर द Maslow's hierarchical needs. This diagram is important. Diagram board examination में पूछा जाता है, so this diagram is important. Okay. Next is financial and non-financial incentives. Okay, so first we'll talk about incentives. Incentives क्या होता है? Business inspire their workers to maintain their work aptitude and increase their efficiency continuously. Such inspiration is called incentives. Means जो सैलरी के अलावा बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयज को अच्छा काम करने के लिए, वो इंसेंटिव्स, उसको हम इंसेंटिव्स कह सकते हैं। ओके, सो टू मेंटेन देयर वर्क एप्टीट्यूड, उसी एप्टीट्यूड से काम करें और इंक्रीज एफिशिएंसी और कंटिन्यूसली एफिशिएंसी इंक्रीज करते जाएं। ओके, सो उसे और उस इंस्पिरेशन को हम इंसेंटिव्स कह सकते हैं। इंसेंटिव्स मींस विच इंसाइट्स और हैज अ टेंडेंसी टू इंसाइट एक्शन। इंसेंटिव्स मींस जो मोटिवेट करे या उसको टेंडेंसी है किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने की। ओके, incentives increase workers enthusiasm. Such incentives are helpful to employees to achieve their objectives. There are two types of incentives. और जरूरी नहीं कि हर एक एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर इंसेंटिव से ही मोटिवेटेड फील करे, उसकी एफिशिएंसी बढ़े। अलग अलग टाइप्स के इंसेंटिव्स है। जनरली हमने दो ग्रुप में कैटेगराइज किया है इंसेंटिव्स को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और द वन इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ओके, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मींस मनी रिलेटेड जो बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट आर नोन एज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अदर आर नॉन फाइनेंशियल मींस नॉट रिलेटेड विद डायरेक्ट मनी। ओके, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या है, जैसे शेयर इन प्रॉफिट, को पार्टनरशिप, प्रमोशन, बोनस, कमीशन, प्राइजेस, सजेशन एंड एडवाइजेस। नॉन फाइनेंशियल में सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, रिकॉग्निशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, advisor, welfare activities and amenities, and other incentives. So about incentives, financial and non-financial, we'll be discussing in next part of the video. If you are having any doubt, please fill down the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.